Hello, Namaskar, students. Today I have brought you another video that is part second for 19 golden rules of English grammar to avoid errors. After this video, I'll send you a PDF or some files to practice. Okay, students, keep watching and do watch it till the end. Okay, thanks. Students, let us go to another part of 90 golden rules of English grammar to avoid errors. So let us go with the 31st. The present perfect continuous tense is used for an action that began in the past time and still going at the time of speaking. It is used with adverbial of time introduced by since, for and how long. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इन विच वी जनरली यूज हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस present participle. Okay, so when you find any sentence beginning with how long, since, है ना, or you find a past action that began in the past time and you think it's still going at the time of speaking, so you have to use present perfect continuous tense in it. For example, here how long are you working in this office, क्वेश्चन लिखा है उसने, तो इस आर यू वर्किंग इट्स अ रॉन्ग वन, इट्स अ wrong thing. So the correct answer would be how long have you been working in this office? It means you are asking about the time, means you know that he started working there in that office in the time of in somewhere point in past, and he is now also working and will also work in future. So here, how long have you been working in this office is a right answer. Okay, let us move to next one. The next one is a verb when preceded by a preposition must be gerund. Preceded means जब भी किसी वर्ब के बाद कोई preposition हो और आगे कोई action आए तो it must be in with gerund. Gerund, you know what gerund is? Gerund is a verbal noun that we write as helping verb plus ing. Okay, helping verb plus ing. So here they were punished for come late. Punished, they were punished. Punish is a verb, हाँ, और verb के बाद for दे रखा है, it's a preposition. तो according to rule there must be gerund. तो this one will be right. They were punished for coming late. Okay. तो always remember कि when a verb is preceded by a preposition, okay, there must be gerund. Let's let us study the number 33. The future tense is used in the clauses of time, place, and condition. Here the present indefinite tense is used. भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रखा हो ना एक क्लोज में, तो जो दूसरी क्लोज जो होगी जिसमें हम बात करते हैं क्लोजेज ऑफ टाइम, प्लेस और कंडीशन में, तो वहाँ पे प्रेजेंट के सामने आपको फ्यूचर टेंस यूज़ करना है सबऑर्डिनेट क्लोज में. फॉर एग्जांपल, आई शैल वेट फॉर यू till you will finish your work. So here this one, this will be wrong. The correct answer would be I shall wait for you till you finish work. Why? Because uh, in the subordinate clause we have used shall plus first form, so in the main clause there would be present indefinite tense used. Next, number 34. The present perfect tense is not used with the adverbs of past time like yesterday, in plus year. Okay, here past indefinite tense would be used. In short, you can say
with let me write something for you. For example, if you find the formation like year in plus year, okay, and you find last plus any name of time and a day, last Monday and last night, all that, okay. If you find yesterday, okay, है ना, or if you find ago, so you have to use the second form of verb, that is so called the past indefinite tense. For example, uh, I have bought a cycle yesterday, so it's a wrong one because yesterday is used. So I bought a cycle yesterday. Okay, students, let me erase all these things for you. Next, the next is the past tense is used to present the earlier of two past action. Earlier of two past action means when you will when there in classroom teaching I taught you when clause, in which I told you कि when clause there will be two action. One is complete, another is means both are completed, you can say when clause है ना. There will be two actions, okay, both are completed. So the first completed, जो पहले complete हुआ उसके what we will use, we use had plus third form, and for the last completed we will use second form, okay. I taught you in the class. Similarly, here in this given sentence, if you find in the given sentence what, when I reach the station, the train already left, it's a wrong one, ये गलत है. तो क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या होगा इसका आंसर कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. दिस विल बी द करेक्ट वन, okay. Let's go through another rule. Scarcely or hardly is followed by when. मीन्स scarcely और hardly के बाद आपको when का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, scarcely had I entered the room when I heard a shriek. shriek मीन्स cry, है ना. जैसे बताया था कि scarcely और hardly, और उसके बाद हमने क्या बताया था कि इन्वर्जन यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड plus subject, and then you have to use third form of verb, okay, and then rest of the sentence. So the right, so the question sentence would be scarcely had I entered the room when I heard a cry, okay. Next, another example, no sooner is followed by then. नो सूनर के बाद आपको देन का यूज़ करना है, THAN, देन का यूज़ करना है. नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगेन टू रेन, ओके. सो हियर what will be the format would be no sooner, you may find no sooner, then you have to use did, thereafter subject and thereafter verb first form, okay, and then you have to use then, THAN, then, and thereafter second form. So क्या होगा कि no sooner did we reach the station, okay, there then it began to rain, okay. So keep it in mind, okay. Let us read the next one. Not only is followed by but also. नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो पेयर होता ही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा इन्वर्जन का भी ध्यान रखना आपको. नॉट ओनली जब बिगिन में व्हेन वी यूज इट इन एट द बिगिनिंग वी हैव टू इन्वर्स द वर्ब को इन्वर्स करना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना पड़ेगा. नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड होम सेफली.
मतलब ना केवल उसने उसको छोड़ा, उसको तो उसकी मदद की, बल्कि उसको घर भी सेफली उसको छोड़ा है। तो यहाँ पे एक बात आई कि है, डिड ही हेल्प आना चाहिए, ना कि हेल्प्ड। नो, डिड ही हेल्प। ओके, डिड वुड बी प्लेस बिफोर सब्जेक्ट और ड्रॉप होम सेफली। नेक्स्ट, सो, so plus adjective plus as, this will be used in negative sentence to compare. Okay, and as plus adjective plus as is used in the affirmative sentence. Okay, to compare. For example, he is not so intelligent as his brother. ओके, इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना उसका भाई है। तो नेगेटिवली वी हैव कंपेयर्ड द टू पर्सन। so plus adjective plus as is used in negative sentence. Okay, he is as tall as his brother. So you see, as plus adjective plus as, okay, it will be used in positive sentence. positive sentence में उसको यूज करेंगे हम। later, latest refer to time, later and last refer to position. Okay, for example, I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. Here, later than I expected. So later तो I said कि last position में होना चाहिए, तो correct answer would be I reached at 10 a.m. but he was later than I expected. So here this letter, okay, this was the incorrect one. Okay, next, farther means more distant or advanced. Further means additional. Okay, incorrect sentence देखिए, he insisted on further improvement. ओके, फार्दर इम्प्रूवमेंट तो अब आगे उसमें उसकी बात आनी चाहिए, वो डिस्टेंस की बात थोड़ी हो रही है, ये तो एडिशनली इम्प्रूवमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो हियर फार्दर वर्ड हैज़ बीन यूज्ड incorrectly. So the correct answer would be he insisted on further improvement. Clear, students? Let us move to next one. Each is used in speaking of two or more things. Every is used only in speaking of more than two. Okay, means when we know the definite number of any noun, okay, we can use each, and when we don't know the definite number of that one, you can use every. Okay, for example, क्या कि every of the two boy will get a prize, means एक बात तो ये भी कहा कि भाई ईच को हम यूज़ करेंगे टू थिंग्स के लिए, टू और मोर थिंग्स के लिए, लेकिन एवरी को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, मोर देन टू, ऑलवेज मोर देन टू। टू से ज़्यादा हो तो एवरी करेंगे, और दो या दो से उसमें एक उसमें हो तो हम ईच का यूज़ करेंगे। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ईच ऑफ द टू बॉय विल गेट अ प्राइज। नेक्स्ट, to express quantity or degree, some is used in affirmative sentences, any in negative and interrogative sentences. Means when you know कि there is something available, means कुछ है, मतलब सम टेल्स यू अबाउट सर्टेनिटी और क्वांटिटी के बारे में कि भाई हाँ कुछ है, तो पॉजिटिविटी से बात हो रही, तो हम यूज़ करेंगे उसको सम को। लेकिन अगर ये लगे कि भाई ना के बराबर नहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एनी। मीन्स व्हेन यू आर नॉट कन्फर्म, तो आप यूज करेंगे एनी। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बोट सम मैंगोज। अब इफ यू नो दैट इट इज़ क्वाइट क्लियर कि भाई उसने खरीदे हैं, तो सम विल बी करेक्ट। लेकिन एज पर इट्स क्या लिख रखा है, हैव यू बोट एनी मैंगोज, तो क्या आपने कोई मैंगो खरीदा, मीन्स यू आर नॉट कन्फर्म कि वेदर ही हैज़ परचेज एनी मैंगो और नॉट। ओके, आई हैव सम बुक्स, मीन्स आई हैव, पॉजिटिवली आई हैव सम बुक्स। ओके, और इफ़ आई से हैव यू गॉट एनी बुक, तो यहाँ पे एनी क्या है, एनी इज़ नॉट सर्टेन कि भाई आपके पास बुक है या नहीं, तो है ना ऐसे। ओके, और सम मोर यूज़ अगर हम बात करें तो देर आर सम मोर यूज़ ऑफ सम एंड एनी। तो कह रहा है कि एनी को हम बात करें तो इफ़ यू फाइंड विद आउट, क्या मिला आपको, विदाउट,
तो विदाउट के साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, एनी, कि लेट अस डू विदाउट एनी मिस्टेक, लेट अस डू इट विदाउट एनी मिस्टेक। तो विदाउट के साथ एनी आपने यूज़ किया है ना। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इनके साथ भी आप एनी का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे इमिट नेगेटिव सेंस। ओके, ही हैड हार्डली एनी फ्रेंड, है ना, ना के बराबर, मतलब कंफर्म नहीं कि उसके कोई फ्रेंड है भी या नहीं। ओके, let us move to next one. To express quantity or degree, some is used in affirmative sentences, any in negative interrogative sentences. ये हम कर चुके हैं. Next one is in comparing two things, the comparative should be used, the superlative should not be used. भाई सीधी सी बात है, किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करो ना। सुपरलेटिव डिग्री तो अल्टीमेट होती है सबसे, मतलब जो, ओके, तो जैसे इन विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, और बेस्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव है, तो क्या होना चाहिए, विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, दोनों में से अच्छा कौन है, क्योंकि बेस्ट तो सबसे अच्छा होता ही है, तो कंपेरिजन थोड़ी है। नेक्स्ट 46, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग are compared, the comparative in ER is not used, more is used for this purpose. जो दो क्वालिटीज़, अब एक पर्सन की जो दो क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री के टाइम पर हम ER वाला जो सेंटेंस वो है ना, वो यूज़ नहीं करेंगे, जबकि हम मोर लगाएंगे उसके साथ कि ही इज़ वाइजर देन ब्रेव, तो हियर इट वुड बी रॉन्ग वन। आंसर क्या होगा, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव, क्योंकि ओके। Number 46, when comparison is made by mean of comparative, the thing compared should be excluded from the class of things with which it is compared by using other and some such words. For example, he is cleverer than any boy in the class. तो ही इज क्लियरर देन एनी अदर बॉय, क्योंकि कंपैरिजन किया है ना, बाय द मीन्स ऑफ कंपेरेटिव आपने उसको यूज़ किया है, दूसरी थिंग को हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सॉरी, तो वहाँ है ना, आपको क्या यूज़ करना है, अदर यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। ओके, एनी अदर बॉय, एनी के साथ अदर भी यूज़ करेंगे आप। नंबर 47, when comparison is made by means of superlative, the thing compared should include the class of things with which it is compared. जो कंपैरिजन हम करते हैं सुपरलेटिव का यूज़ करते हुए, तो जो जिस थिंग को कंपैरिजन में हम इंक्लूड कर रहे हैं, वो उसी के साथ आए जो जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, अदर की जरूरत नहीं है वहाँ पे, है ना, सबके साथ है, तो क्योंकि सुपरलेटिव तो सब में से अच्छा होगा ना, इसलिए। When two persons or things are compared, it is important that the same parts of thing should be compared. ओके, जब दो पर्सन और चीज़ों को कंपेयर किया जाए, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना कि उसी सेम पार्ट होना चाहिए, सेम पार्ट का ही उस थिंग का उससे कंपेयर होगा। फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, तो यहाँ अब गड़बड़ होगी, तो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़, क्योंकि देन है, देन लगा रहा है, देन की बजाय क्या होना चाहिए, दैट ऑफ यूज होना चाहिए, देन दैट ऑफ हो जाएगा कि द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉम्बे, क्योंकि दैट ऑफ स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नंबर 49, डबल कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। डबल कंपेरेटिव्स, डबल सुपरलेटिव को हम यूज नहीं करेंगे भाई, नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, नहीं, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस वुड बी द राइट आंसर। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, मीन्स अब देखो मोर वाइजर यूज़ कर दिया, अरे वाइजर अपने आप में कंपेरेटिव है, तो मोर की ज़रूरत ही क्या है, हैं? तो क्या करेंगे, ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 50, द कंपेरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरर, है ना, दे शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन, मतलब जिनके सीधे हो गए कि आई ओ आर जो सफिक्स लगता है उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है तो टू यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ देन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर देन मी, इट्स अ रॉन्ग वन, तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, he is senior to me. Okay, let us read the next one. Adjectives like unique, ideal, perfect, complete, universal, entire, extreme, chief, full, square and round, which do not admit different degrees of comparison, should not be compared. Means ये अपने आप में यूनिक, यूनिक देखो ना, यूनिक मीन्स होता है अनुपम, अनूठा, अनोखा, तो ये अपने आप में बियॉन्ड कंपैरिजन है, तो इनके साथ कंपेरेटिव का यूज़ करना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, अब यूनिक थिंग दे रखा है तो मोस्ट लगाने की जरूरत क्या है ना, तो ईयर मोस्ट हैज़ बीन यूज इनकरेक्टली, तो आंसर वुड बी दिस वन, राइट, कि दिस वन वुड बी राइट, इट इज़ अ यूनिक थिंग। ऑल द एडजेक्टिव्स which refer to the same noun should be in the same degree of comparison। जो डिग्री, जो एडजेक्टिव है ना, जो उसी नाउन के साथ, मतलब उस सेम नाउन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी उसके साथ यूज़ होनी चाहिए। जैसे ही इज़ द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, अब वाइजेस्ट और ऑनेस्ट आ गया, तो वाइजेस्ट तो सुपरलेटिव होगी, बट ये मोस्ट तो नहीं लगा है ना उसने ऊपर वाले, तो ये दिस विल बी द राइट आंसर कि ही इज़ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, तो वो जो पैक्ट जो है उसका एडजेक्टिव की डिग्री का, वो इसके साथ जरूर फॉलो होना चाहिए नाउन के साथ। ओके, तो ही इज़ द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। Elder and eldest should be used for persons only. Strictly speaking, they are used for the matter for the members of the same family. Elder और एल्डेस्ट, सेम मेंबर ऑफ फैमिली में जो आपसे बड़े हैं ना, उनके लिए आप एल्डर यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा उसके लिए एल्डेस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अदर देन फैमिली हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, ही इज़ माय ओल्डर ब्रदर, अब ओल्डर ब्रदर मतलब कोई ब्रदर है, तो अब क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर, क्योंकि आपका रियल ब्रदर है वो और बड़ा भाई है आपकी फैमिली में है, तो इट मीन्स एल्डर ब्रदर, दिस विल बी द राइट वन। ओके, नेक्स्ट, टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, वी यूज़ एन एडवर्ब। किसी वर्ब और एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो तो हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी राइट्स वेरी केयरफुल, तो हियर केयरफुल हैज़ बीन यूज इनकरेक्टली, तो राइट आंसर वुड बी ही राइट्स वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली लिखता है। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ मोर, विच इज़ द नेक्स्ट, तो केयरफुली इज एन एडजेक्टिव विच cannot modify the verb adverb very, therefore carefully adverb must be used in place of adjective careful, carefully बजाय carefully हमने यूज करना है। नेक्स्ट, टू means more than required and it is used with unpleasant adjectives, unpleasant adjectives के साथ आप टू यूज करेंगे more than required की सेंस में। So we cannot use too glad, too happy, too pleasant, too healthy. Okay, I'm too glad to meet you. Okay, instead you have to use I'm very glad to meet you. है ना? Okay, I'm very glad to meet you. Next,
a sentence which is based on to plus adjective plus to format we cannot replace with so that साथ हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसका साथ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू यूज कर रखा है. इफ वी रिप्लेस टू विद सो दैट, टू ऑल्सो मस्ट रिप्लेस विद कैन नॉट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक. अब यहाँ पे या तो ये करो करेक्ट, ही इज़ टू वीक टू वॉक, अदरवाइज ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. ओके, this would be the transformation of this sentence. Much is much much too sorry much too is followed by unpleasant adjective. much too unpleasant adjective के साथ much too यूज करेंगे, whereas too much is followed by a noun. लेकिन too much के साथ हम यूज करेंगे noun. ओके, तो the formula is much too plus an unpleasant adjective. For example, too much. Okay, and too much is followed by noun. For example, his failure is too much painful for me. अब too much painful है तो much too आना चाहिए ना, क्योंकि painful तो एक नेगेटिव उसमें आ गया, तो क्या आ जाएगा, his failure is much too painful for me. Next, his wife's rude behavior gives him much to pain. आप देखो much to pain, यहाँ पे बात आ गई, तो यहाँ पे क्या जाएगा. अब पेन, तो पेन क्या है, पेन इज अ नाउन. व्हेन पेन इज यूज एज अ नाउन, ओके, पेन क्या है, पेन इज अ नाउन, तो विद नाउन वी हैव टू यूज टू मच. बिफोर नाउन वी हैव टू यूज हियर अकॉर्डिंग टू रूल टू मच. ओके, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन. नेक्स्ट, क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर. क्वाइट और ऑल जो डिटर्मिनर है, इनका अलग अलग, मतलब एक साथ यूज़ नहीं करना है. ओके, एक साथ यूज़ नहीं होगा ये. ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, नो ही इज़ क्वाइट राइट, और ही इज़ ऑल राइट, ऐसा होना चाहिए था. आर्टिकल ए और एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव, ओके, प्लस नाउन और रेदर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, अ फेयरली गुड बुक मीन्स फेयरली से पहले ए और एन आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, रादर अ डिफ़िकल्ट मीन्स फेयरली से पहले आपने ए यूज़ किया इस साइड ऑफ से पहले, और यहाँ पर रादर के बाद एक आएगा, रादर अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. बट वी कैन नॉट यूज़ प्लेजेंट एडजेक्टिव विद रादर. जो प्लेजेंट एडजेक्टिव है ना, उनके साथ हम रादर का यूज़ नहीं करेंगे. एंड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव विद फेयरली, लेकिन फेयरली के साथ अनप्लेजेंट यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ रादर गुड बुक. ओके, अगर गुड अच्छा है तो ये तो प्लेजेंट है, प्लेजेंट के साथ रादर थोड़ी आएगा, क्या जाएगा, इट वॉज अ फेयरली गुड बुक. ये सेंटेंस बहुत आता है पेपर में भाई. नेक्स्ट एंड लास्ट, इनफ when used as an adverb is preceded by a positive degree adjective or adverb. enough का जब हम यूज़ करते हैं एक एडवर्ब की तरह से, तो उससे पहले कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए. जैसे ही इज़ ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, तो यहाँ पे ग्रेटर हैज़ बीन यूज इनकरेक्टली. क्या होगा, ही इज़ ग्रेट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री यूज होनी चाहिए ना, तो ही इज़ ग्रेट इनफ टू pardon you. This will be the right answer. Students, I'll send you some exercise to solve. Okay, keep practicing, keep learning. Okay, and keep waiting for the next video. Thanks for watching. This is all from my end. Thank you.